Hello, Namaskar. My name is T.S. Sudhir and you're watching Study with Sudhir. This is the channel where you will be getting the entire Maharashtra State Board Class 11 and Class 12 English syllabus videos. Okay, so जहां तक अंग्रेजी का सवाल है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है because all of that will be done here on Study with Sudhir. So my only request to you is please subscribe to the channel, spread the word, share the video links with your friends on Telegram or WhatsApp groups or Insta chats so that more students can benefit from these videos. Okay, in great detail, we are explaining all the chapters, poems as well as stories. बाद में grammar वगैरह भी कर लेंगे. Okay, this particular chapter is called The Pillars of Democracy and it is written by Dr. Baba Saheb Ambedkar, B.R. Ambedkar, who was the architect of the Constitution of India. And this is from what he wrote before January 1950. But it is very relevant even to the India of today. Okay, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं क्या. So जो नोट है उसको जरूर पढ़ लीजिए. ये हर चैप्टर में प्लीज रीड द बॉक्स में जो नोट है. He was born on the 14th of April 1891 in a place called Mo, which is now known as Dr. Ambedkar Nagar in Madhya Pradesh. He got his degree from Mumbai in Elphinstone College and subsequently studied at Columbia University, USA, and the London School of Economics. And he was the chairman of the drafting committee of the Constitution of India, which was adopted when? Please write your answer in the comment section. कब adopt हुआ था? Adopt हुआ था 26 जनवरी 1950 को. He was awarded the Bharat Ratna more recently, right? And B.R. Ambedkar, whose statues you see all over the country, is like the symbol for all the oppressed classes, right? Because he fought for them, right? And in this particular chapter, he raises about a couple of points which are very important. One is about hero worship. One is about the concept of nationhood. Okay, और ये बहुत important है. And since I have covered politics and governance for over 30 years, I'll be able to give it you एक तरह का कॉन्टेक्स्ट ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सिर्फ आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए कि बेसिकली व्हाट डिड B.R. Ambedkar want to say. He says, if we wish to maintain democracy, डेमोक्रेसी को अगर मेंटेन करना हो ना सिर्फ एक डेफिनेशन के रूप में, if we wish to maintain democracy not merely in form बट ऑल्सो इन फैक्ट कि पूरी तरह से डेमोक्रेसी को इंप्लीमेंट किया जाए जमीन पर, हमको क्या करना पड़ेगा. ही इज रेजिंग ए क्वेश्चन. ही स्टार्टिंग विद आस्किंग ए क्वेश्चन. द फर्स्ट थिंग इन माय जजमेंट वी मस्ट डू इज टू होल्ड फास्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स ऑफ अचीविंग आवर सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. कहने का मतलब क्या है, बिकॉज ये थोड़ा सा पुराना टाइप ऑफ राइटिंग ऑफ इंग्लिश है तो मैं हिंदी में समझा देता हूं. कहने का मतलब ये है कि जो सामाजिक और आर्थिक जो उद्देश्य हैं, सोशल मतलब सामाजिक, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य जो हैं, उसको हासिल करने के लिए हमको तरीके कौन से अपनाने पड़ेंगे जो कि संविधान में लिखे गए हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखे गए हैं. उन सभी तरीकों को इस्तेमाल करके आप सामाजिक और आर्थिक जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि मैं गरीबी हटाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि सभी लोगों को एक तरह से ही ट्रीट किया जाए, ये सब संविधान के तहत होना चाहिए. इट शुड बी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. व्हेन देयर वाज नो वे लेफ्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स फॉर अचीविंग इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स, जब ब्रिटिश राज के दौरान, तब तो ऑब्वियसली यू वर डिफाइंग द ब्रिटिश लॉस. जो अंग्रेज लोग जो कानून बनाते थे उसका उल्लंघन करते थे फ्रीडम फाइटर्स. क्यों? क्योंकि हमको आजादी चाहिए थी, और आजादी चाहने के लिए यू हैड टू डिफाई, यू हैड टू डू एन उल्लंघन ऑफ दोस लॉस व्हिच वर फ्रेम्ड बाय दोस पीपल फ्रॉम ब्रिटेन. सो देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ जस्टिफिकेशन. तो उस समय पे ठीक था कि आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स यानी कि असंवैधानिक मेथड्स का उपयोग करें, उस समय पर ठीक था. सो B.R. Ambedkar इज मेकिंग ए डिस्टिंक्शन. इस बात पर आप ध्यान दीजिए. He's making a distinction between what happened before 1947 and what should happen after 1947. तब हम गुलाम थे.
अंग्रेज लोग यहाँ पर राज कर रहे थे, लेकिन नाउ when we have our own government, we are a free country, we should follow the constitutional methods, is what Ambedkar said. But where constitutional methods are open, where there can be no justification for unconstitutional methods. Unconstitutional methods क्या है कि आप हड़ताल करें, हड़ताल तो ठीक है, आप दंगा करें, violent methods का इस्तेमाल करें in order to demand what you want from the government. These methods are nothing but the grammar of anarchy. It's an important phrase, and the sooner they are abandoned, the better for us. कहने का मतलब है, anarchy का मतलब है अराजकता, यानी कि राज का उल्टा, यानी कि असंवैधानिक. एंड एनार्की मतलब पूरी तरह से कोलाहल मच जाना, पूरी तरह से ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हो जाना. कि अगर कानून के तहत कहा है कि तुम दंगा नहीं करोगे, तुम पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाओगे नहीं, आर्सन नहीं करोगे, बसों को जलाओगे नहीं, पथराव नहीं करोगे, लेकिन तुम फिर भी करो, तो ये एनार्की है. एनार्की मतलब तुम किसी भी तरह के कानून को नहीं मान रहे हो. और ग्रामर, ग्रामर तो हम समझते हैं ना, ग्रामर जो होता है, सो एनार्की का ग्रामर है ये कि पूरे अस, बिकॉज लैंग्वेज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ग्रामर, है ना. तो उसी तरह से ये पूरे एनार्की का, अराजकता का ग्रामर बन जाता है जब आप संविधान को नहीं मानते हो, कानून को नहीं मानते हो. समझ में आ गया? चलो. The second thing we must do is to observe the caution which John Stuart Mill has given to all who are interested in the maintenance of democracy. Okay, this again is an important thing कि कहते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल, okay, उन्होंने जो कहा अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी, उसके बारे में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा. ओके, एक मिनट, हाँ, 1 minute. Noted down some points out here. Okay. ओके, सो जॉन स्टुअर्ट मिल, जो कि एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था कि जिसको भी डेमोक्रेसी के मेंटेनेंस में, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट, वी आर नॉट ऑटोक्रेटिक कंट्री और वी आर नॉट ए मोनार्की, राइट. यहां पर लोगों का राज चलता है. डेमोक्रेसी इज व्हाट, ये आपने सिविक्स में पढ़ा होगा, इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, राइट. फॉर, बाय एंड ऑफ द पीपल. सो ही सेज जो जिसको भी, लेकिन डेमोक्रेसी का भी मेंटेन करना पड़ता है. ऐसा नहीं डेमोक्रेसी इमीडिएटली कैन बिकम इनटू अ लॉलेस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, एनार्की काइंड ऑफ अ सिचुएशन. लेकिन ही सेज द सेकंड थिंग वी मस्ट डू इज टू ऑब्जर्व द कॉशन इन ऑर्डर टू मेंटेन डेमोक्रेसी. यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो कहा, यानी कि नॉट टू ले देयर लिबर्टीज एट द फीट ऑफ इवन अ ग्रेट मैन or to trust him with powers which enable him to subvert their institutions. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि ऐसा ना हो कि हम हीरो वर्शिप करें, कि एक आदमी को इतना बड़ा चढ़ा दे कि वो आदमी एक तरह से डेमोक्रेटिक लीडर होने के बजाय एक तरह से ऑटोक्रेटिक लीडर हो जाए. ये काफी महत्वपूर्ण बात कही गई है. ओके, सो ही सेइंग लिबर्टीज, हमारे पास जो अधिकार है ये हमारे पास होने चाहिए. ये सारे अधिकार हम दूसरों के चरणों पर नहीं डाल सकते हैं. एंड मेक हिम सो बिग दैट ही बिकम्स ऑल पावरफुल. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग ग्रेटफुल टू ग्रेट मैन. अगर किसी ने देश के लिए और लोगों के लिए अच्छा काम किया है तो एक तरह से ग्रैटिट्यूड होना बिल्कुल सही है. अगर आप उसके तरफ एक थैंकफुल की भावना से रहते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है. जिन्होंने देश के लिए काफी रेंडर्ड, मतलब कंट्रीब्यूटेड, काफी काम किया है. लेकिन ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस की भी एक सीमा होती है. देयर इज अ लिमिट टू ग्रैटिट्यूड, एज हैज बीन वेल सेड बाय आयरिश पेट्रियट डैनियल ओ'कॉनेल. डैनियल ओ'कॉनेल जो कि आयरलैंड के निवासी थे, उन्होंने कहा, निवासी एंड पेट्रियट मतलब वहां के राष्ट्रभक्त थे, उन्होंने कहा, नो मैन कैन बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ हिज ऑनर, no woman can be grateful at the cost of her chastity, and no nation can be grateful at the cost of its liberty. What did Daniel O'Connell said? कि कोई भी आदमी अपनी स्वाभिमान को छोड़कर दूसरे की तरफ ग्रेटफुल नहीं हो सकता, दूसरे की तरफ थैंक यू की भावना के साथ नहीं रह सकता. उसका स्वाभिमान उससे बढ़कर है कि मैं अपने स्वाभिमान को छोड़कर, मैं आई विल बी ग्रेटफुल टू व्हाट यू फॉर व्हाट यू डिड, लेकिन मैं
ग्रैटिट्यूड व्यक्त करने के लिए मैं अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ूंगा। सिमिलरली फॉर अ वुमन, उसकी जो प्योरिटी है, मॉडेस्टी है, चैस्टिटी है, यानी कि उसका जो लाज है, उसको छोड़कर शी विल नॉट बी शोइंग ग्रैटिट्यूड फॉर अनदर पर्सन। सिमिलरली एक देश cannot be grateful at the cost of its liberty। लिबर्टी मतलब कि हम सब आजाद हैं, एंड उसको छोड़कर we cannot be grateful to one person। You know, the liberty is very important, the principles of liberty, that I have these rights within my free country, that I am also equal as any other citizen of this country, right? This caution, ये जो महत्वपूर्ण और एक तरह से वार्निंग दी है, कॉशन, एक तरह से आपको चौकस किया है, is far more necessary in the case of India than in the case of any other country। उनका, अंबेडकर का कहना है कि इंडिया के केस में it is more important than in the case of any other country। भला क्यों? क्योंकि इंडिया में भक्ति का एक तरह से ट्रेडिशन है। We are a very God fearing, we follow many religions, इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिख रिलीजन हो, पारसी रिलीजन हो, हम कई तरह के रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो। लेकिन तो एक तरह से भक्ति की भावना काफी है इंडियंस में, और ये भक्ति की भावना एक तरह से हीरो वर्शिप में मॉर्फ हो जाती है, हीरो वर्शिप के रूप में प्रकट होती है। हीरो वर्शिप का मतलब क्या है? एक्सेसिव एडमिरेशन फॉर समवन, कि हम किसी के लिए कुछ ज्यादा ही एक तरह से कि अरे वाह, बढ़िया है, ग्रेट है, देयर इज नोबडी लाइक हिम, कि हम उसकी जितनी भी त्रुटियां हैं या उसके कोई भी गलतियां हैं उन सबको नजरअंदाज करके सिर्फ उसकी अच्छाई पर ही ध्यान दें। Because he says that in India, bhakti plays a part in its politics unequaled in magnitude by the part it plays in the politics of any other country। दूसरे किसी भी देश के मुकाबले इंडिया में एक तरह से भक्ति का भी राजनीति में एक तरह से रोल रहता है। ओके, भक्ति इन रिलीजन में बी ए रोड टू द साल्वेशन ऑफ द सोल। ही सेइंग, धर्म में भक्ति हो, इफ देयर इज भक्ति इन रिलीजन, इट विल लीड टू कि एक तरह से साल्वेशन, मृत्यु के बाद माय सोल गेट्स लिबरेटेड काइंड ऑफ थिंग दे से इन सम रिलीजन्स, सो दैट विल बी फाइन। बट इन राजनीति, इन पॉलिटिक्स, भक्ति और हीरो वर्शिप इज अ श्योर रोड टू डिग्रेडेशन एंड टू इवेंचुअल डिक्टेटरशिप। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंबेडकर, हाउ डज ही डिस्टिंग्विश बिटवीन भक्ति इन रिलीजन एंड भक्ति इन पॉलिटिक्स? तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। भक्ति इन रिलीजन कैन लीड टू साल्वेशन ऑफ द सोल, मोक्ष मिल सकता है, दैट्स द राइट वर्ड, उस समय नहीं मिला मेरे को, मोक्ष मिल सकता है। लेकिन इन पॉलिटिक्स, इन राजनीति में अगर आप भक्ति, किसी एक बंदे की तरफ ज्यादा भक्ति दिखाएं तो उससे एक तरह से सर्वनाशी होगा, विनाशी होगा। ओके, और इससे एक तरह से डिक्टेटरशिप हो जाएगी। एक बंदा मुसोलिनी, हिटलर की तरह बन जाएगा क्योंकि उसको लगेगा कि मैं ही भगवान हूं। वो सेक्रेट गेम्स में उसका नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग है ना, कभी कभी तो लगता है अपुन ही भगवान है, वैसा फीलिंग आ जाएगा। कभी कभी तो लगता है अपुन ही भगवान है, तो वैसा फीलिंग हो जाए, वो डिक्टेटरशिप हो जाएगा। ओके, सो on the 26th of January 1950 we are going to enter into a life of contradictions। तो 26 जनवरी रिपब्लिक डे, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉर्मली अडॉप्ट किया भारत ने, we are going to enter into a life of contradictions। लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस क्यों? कॉन्ट्रडिक्शन मतलब दो अलग चीजें एक साथ कोएग्जिस्ट करती हैं। कैसे? इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी, and in social and economic life we will have inequality। पॉलिटिक्स में इक्वालिटी कैसी होगी? बिकॉज हर आदमी के पास एक वोट रहेगा, तो मेरा वोट भी एक वोट रहेगा, नरेंद्र मोदी का वोट भी एक वोट रहेगा, सचिन तेंदुलकर का वोट भी एक वोट रहेगा, रणबीर कपूर का वोट भी एक वोट रहेगा, है ना? लेकिन और सभी चारों वोटों का वैल्यू एक ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी का वोट का वैल्यू विल बी मोर देन द वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ द अदर पीपल। नो, एवरीवन्स वोट विल हैव द सेम वैल्यू, राइट? लेकिन इन सामाजिक और आर्थिक जिंदगी में we shall by reason of our social and economic structure continue to deny the principle of one man one value। लेकिन, और ये बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन जो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में होता है उसमें हम भेदभाव करते हैं कि हम, ये नीची जाति का है, ये ऊपरी जाति का है, ये गरीब है, ये अमीर है।
उसके बेसिस पर वी मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। हम एक्स को नीचे करके वाई को ऊपर करते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोफाइल एंड इकोनॉमिक स्टेटस, है ना? So is asking, how long shall we continue to live this life of contradictions? So on this basis, Ambedkar is calling it a life of contradictions. कि हम politically तो हम बोलते हैं कि we are all equal, but socially and economically we are not equal. I hope I have made it clear, right? If we continue to deny it for long, और हम ज्यादा दिनों तक इस बात को हम नकारते रहेंगे, so we will be only putting our political democracy in peril. In peril मतलब at risk, in danger. अगर हम इसको इग्नोर करते रहेंगे, और इग्नोर करने का क्या असर होगा? जो जिन लोगों को के ऊपर एक तरह से दबाव पड़ता रहेगा, वे एक ना एक दिन विद्रोह करेंगे। दे विल रिवोल्ट कि अरे हमको कितने सालों तक हमको दबा के रखते हो। जैसे काफी सारी मूवीज भी इस चीज पे बनती रहती हैं। देयर इज अ फैसिनेटिंग मूवी मेड इन तमिल, असुरन, with Dhanush. Fantastic movie. Okay. It was made in Telugu also, called Narappa, starring Venkatesh. कई सारी मूवीज मराठी में इस तरह से काफी सारी मूवीज बनती रहती हैं, which are very socially very forward and very they bring out alive. वो कौन सी पिक्चर थी जिसको कि ये ईशान खट्टर और जानवी कपूर के इसमें रीमेक किया था? That was again something on similar lines, right? Intercaste marriage के बारे में. I forget the name. You remember what I'm talking about, right? So he's saying कि अगर हम इसको नजरअंदाज करते रहेंगे तो इससे हमारी राजनीतिक डेमोक्रेसी पर खतरा आ सकता है। सो वी मस्ट रिमूव दिस कॉन्ट्रडिक्शन कि हमें इस तरह से भेदभाव नहीं करने चाहिए, राइट? एंड or else who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy. वो blow up करेंगे, वो विद्रोह कर देंगे, which this assembly मतलब parliament, which this drafting committee and parliament has so laboriously, मतलब काफी मेहनत करके हमने इसका ढांचा क्रिएट किया है। this राजनीतिक डेमोक्रेसी का हमने एक ढांचा क्रिएट किया है, और उसके ऊपर काफी खतरा मंडरा सकता है अगर हम इस सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को रिमूव ना करें। समझ में आ गया यहां तक? गुड, इट्स वेरी गुड, आई एंजॉयड। The second thing we are wanting in is recognition of the principle of fraternity. What does fraternity mean? Fraternity का मतलब क्या है? दूसरा, fraternity is a word which has been borrowed from France, from French Revolution. Fraternity means a sense of common brotherhood of all Indians. यानी कि हम सब भाई भाई हैं. Okay, if Indians being one people, it is the principle which gives unity and solidarity to social life. Okay, अगर fraternity का आपसे definition पूछा जाए the way Ambedkar describes, तो आपको इन तीनों लाइन में से निकाल के डालना पड़ेगा. It is a difficult thing to achieve, कि ये achieve करना इतना आसान नहीं है. Okay, how difficult it is can be realized from the story related by James Bryce in his volume on American Commonwealth about the United States of India. Okay, so उनका कहना है कि ये जो राइटर का नाम लिया है जॉन ब्राइस, इन हिज वॉल्यूम ऑन अमेरिकन कॉमनवेल्थ अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, द स्टोरी इज, और ये इस स्टोरी के बारे में बताते हैं, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. ही सेज, ब्राइस ने खुद इस स्टोरी का वर्णन किया in his volume on American Commonwealth. Some years ago, the American Protestant Episcopal Church, एक चर्च का नाम लिया है, उस पर वहां पर चर्चा हुई उनके 300वे अधिवेशन पर, कि हमको एक तरह से जो प्रार्थना का जो प्रोसीजर है उस चर्च पर, उसमें थोड़े से बदलाव लाने पड़ेंगे. Okay, it was thought desirable to introduce among the short sentence prayers a prayer for the whole people and an eminent New England divine the process. तो उन्होंने कहा कि हमको एक पर्टिकुलर प्रेयर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. ओके, और उसमें ये वर्ड्स डालने पड़ेंगे, ओ लॉर्ड ब्लेस आवर नेशन. चर्च में ये प्रार्थना होती है ना, ओ लॉर्ड ब्लेस आवर नेशन, ये 5 वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. Accepted one afternoon on the spur of the moment,
द सेंटेंस वाज ब्रॉट अप द नेक्स्ट डे फॉर रिकंसिडरेशन। तो पहले जब अधिवेशन हुआ उस पे इस बात को माना गया कि हम ओ लॉर्ड ब्लेस आवर नेशन को प्रेयर में, प्रार्थना में इंक्लूड कर देंगे। नेशन मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगले दिन इस बात पर फिर से चर्चा हुई, ओके, और उस पर काफी लोगों ने आपत्ति जताई। आपत्ति जताई मतलब ऑब्जेक्शंस रेज किए, ओके। लेटी मतलब मेंबर्स ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटी, वहां के जो धार्मिक कम्युनिटी है वहां के लोगों ने उस पर आपत्ति जताई। किस वर्ड पर? नेशन वर्ड पर। नेशन, नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, देश का मतलब होता है कंट्री। समझ गए? ये कंट्री और नेशन में अलग फर्क है। कंट्री इज देश, नेशन इज राष्ट्र। राष्ट्रवाद जो बोलते हैं, नेशनलिज्म जो बोलते हैं, दैट इज राष्ट्रवाद। तो नेशन वर्ड पर आपत्ति जताई बिकॉज उनको कहा गया कि इट इज काइंड ऑफ टॉकिंग अबाउट नेशनल यूनिटी, ओके, एंड देयरफॉर इट वाज ड्रॉप्ड। एंड देयर उसके बाद उन्होंने वर्ड्स यूज किए, ओ लॉर्ड ब्लेस दीज यूनाइटेड स्टेट्स। इसीलिए यूएसए को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं। और एक तरह से ये इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स, ओके। इंडिया भी इन द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स, लेकिन हमने इसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया नहीं रखा है, ओके। देयर वाज सो लिटिल सॉलिडारिटी इन द यूएसए, और इसका कारण ये था कि उस समय यूएसए में जब ये विवाद हुआ उस समय एक तरह से यूनिटी नहीं थी, ओके, यूनिटी नहीं थी। और इसी वजह से अमेरिका के लोगों को लगा कि हम नेशन नहीं है, हम एक राष्ट्र नहीं है, हम देश हैं। हम वी आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ 50 स्टेट्स व्हिच हैव कम टुगेदर, राइट? इफ द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कुड नॉट फील दैट दे वर ए नेशन, बिकॉज उस समय पर ब्लैक व्हाइट वगैरह के साथ रेसिज्म वगैरह काफी होती थी, तो उनको भी लगा, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि वी आर नॉट ए नेशन बिकॉज वी डू नॉट ट्रीट एवरीबडी ऑन पार, राइट? ब्लैक और व्हाइट के बीच में हम भेदभाव करते हैं, राइट? तो अंबेडकर का कहना है कि अगर यूएसए के लोगों को नहीं लगा तो इंडिया के लोगों को भला कैसे लग सकता है? एंड अंबेडकर इज सेइंग दिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फैक्ट दैट पार्टीशन के टाइम पे 3 साल पहले बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम कम्युनल राइट्स हुए पूरी जगह पर। पार्टीशन में ही कितने लोगों की मृत्यु हुई, एंड मेनी प्लेसेस लाइक कोलकाता एटसेट्रा सॉ वाइड स्प्रेड कम्युनल राइट्स। इसी वजह से 15 अगस्त 1947 को वेयर वाज महात्मा गांधी? महात्मा गांधी वाज इन कलकत्ता trying to control the communal rights out there where Hindus and Muslims were killing each other, right? So Ambedkar has seen this whole division on religious lines, on caste lines, right? So he's saying that how difficult it would be difficult for Indians to think that they are a nation. Indians भी नहीं सोच सकते हैं that we are a nation. हम राष्ट्र नहीं है, हम देश हैं, but हम राष्ट्र नहीं है। I remember the days, मुझे याद है वो दिन, when politically minded Indians resented the expression the people of India. They preferred the expression the Indian nation. I am of the opinion that believing that we are a nation, we are cherishing a great delusion. Delusion का मतलब हम एक अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम अगर हम माने कि हम एक बड़े राष्ट्र हैं तो हम एक तरह से अपने आप को धोखा दे रहे हैं, धोखे में रख रहे हैं, बिकॉज ये सही नहीं है, ओके। हाउ कैन पीपल डिवाइडेड इनटू सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कास्ट बी ए नेशन? This is the important point that Ambedkar is raising. He's saying कि इतने सारे जातियों में हमने अपने आप को बांटा हुआ है. How can we say that we are a nation, right? The sooner we realize that we are not अभी तक as yet a nation in the social and the psychological sense of the word, the better of us. हम जितना जल्दी ये रियलाइज कर सकें कि हम सामाजिक तरीके से and even in the मानसिक रूप, in the psychological way, we are not yet a nation, हमारे लिए बेहतर होगा, ओके। फॉर देन ओनली वी शैल रियलाइज द नेसेसिटी ऑफ बिकमिंग ए नेशन। जब हम ये रियलाइज कर लेंगे कि हम राष्ट्र नहीं है सही मतलब में, सही तरीके से, सही मायनों में, तभी हम राष्ट्र बनने की कोशिश कर सकते हैं। तभी हम आपस में जितने भी इतना जो डिविजन्स हैं उसको मिटाने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद ही हम एक सही मायनों में राष्ट्र कहला सकते हैं, राइट? द रियलाइजेशन ऑफ दिस गोल is going to be very difficult. ये आसान नहीं होगा, far more difficult than it has been in the United States. USA में जितना था उससे ज्यादा मुश्किल होगा. The USA has no caste problem. In India there are castes. यहाँ पर कई सारी जातियां हैं. The castes are anti-national. So casteism को believe करने वाले लोग एंटी नेशनल है. आजकल एंटी नेशनल वर्ड काफी इस्तेमाल किया जाता है.
अलग कॉन्टेक्स्ट में। अंबेडकर का कहना था कि जो लोग जातिवाद में विश्वास करते हैं वे सही मायनों में एंटी नेशनल है, एंटी नेशनल है, राष्ट्र के खिलाफ हैं। इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज दे ब्रिंग अबाउट सेपरेशन इन सोशल लाइफ, सामाजिक लाइफ में समाज में एक तरह से वे डिवाइड क्रिएट करते हैं। दे आर एंटी नेशनल ऑल्सो बिकॉज दे जनरेट जेलसी एंड एंटीपैथी बिटवीन कास्ट एंड क्रीड। ओके, एक दूसरे के बीच में भेदभाव करते हैं, बट वी मस्ट ओवरकम ऑल दिस डिफिकल्टीज इफ यू विश टू बिकम ए नेशन इन रियलिटी। तो हमको ये भेदभाव मिटाने पड़ेंगे अगर हम असली मायनों में राष्ट्र बनना चाहते हैं। फॉर फ्रेटर्निटी कैन बी अ फैक्ट ओनली व्हेन देयर इज ए नेशन। भाईचारा तभी हो सकता है जब हम पूरी तरह से राष्ट्र बन सके। विदाउट फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 मेन वर्ड्स थे, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, विल बी नो डीपर देन कोट्स ऑफ पेंट। यू नो, आप स्लोगन पेंट कर देंगे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लेकिन ये सिर्फ पेंट का कोट होगा। ओके, इट विल नॉट बी इन reality and it will never become a part of India as a great nation. So very important chapter. अगर आपने ये पूरा explanation को समझ लिया है तो आपको कोई भी आंसर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में काफी आसानी होगी। जो थोड़े थोड़े जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो मैंने आपको हाईलाइट किए हैं उसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए और अपने इस आंसर्स में उसका इस्तेमाल भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।